Okay, Pravas, tell me the meaning of stress. Stress चीज क्या है? The stress is the internal resistance offered by a material to restrict the deformation. Okay, और strength क्या है? The strength is the ability of the material to resist deformation until fracture. Until fracture or until yield Sorry, sir, until yield. or until ultimate? No, sir. Basically, अगर yielding हो जाती है, then it's an indication that material is about to fail. So basically, we'll define strength as the ability to resist deformation till yielding point. What about the brittle materials? So for a brittle material, we'll design the material in such a way that for the ultimate strength, sir. Then तो आपने fracture कहा था. सर मैंने डक्टाइल मटेरियल्स के लिए बोला था. So, but you also told me that up to yielding only. Then you modified your answer to yielding. Okay. So इलास्टिक रिकवरी पता है आपको? इलास्टिक रिकवरी क्या होती है? व्हाट इज इलास्टिक रिकवरी? यस सर. सर बेसिकली जब हम किसी मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं, देन इट गेन्स सम एक्सटेंशन और चेंज इन लेंथ, एंड एज सून एज वी रिमूव द लोड, देन सम of the deformation is restored by that material. Then the amount which is restored is known as the elastic recovery, sir. तो कहाँ होती है ये इलास्टिक? इलास्टिक लिमिट के अंदर होती है या प्लास्टिक जोन में होती है? नहीं सर, ये इलास्टिक रिकवरी में ही होगी. प्लास्टिक रिकवरी में तो मटेरियल पूरा डिफॉर्म कर जाएगा और वापस से नहीं आ पाएगा. माय क्वेश्चन इज वेदर इज द इलास्टिक जोन ओनली और प्लास्टिक जोन आल्सो? सर इन इलास्टिक जोन ओनली. इसका मतलब इलास्टिक जोन तो वही हुआ जिसमें कि आपका खींचोगे डिफॉर्म नहीं होगा. डिफॉर्म होगा मतलब व्हाटएवर, लेट्स से इलोंगेट और कंप्रेस, और अपनी शेप रिगेन कर लेगा. यस सर. So there is no, as per you, there is no elastic recovery in the plastic region. Sir, there is some little bit of recovery, but that is negligible. कैसे पता चलेगा हमें कितनी है? सर उसके लिए हमें इलास्टिक रिकवरी का लोड वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. लोड वर्सेस टाइम. लोड वर्सेस टाइम क्यों? Why load versus time? Can you show me the elastic recovery in the this stress strain diagram? So can I draw? Yeah, go ahead. Elastic recovery, right sir? Stress strain diagram draw karo for mild steel, let us say, and okay sir, show me the elastic recovery. kahan aap show kar sakte ho? Okay. Let's say in deformed in plastic region. Okay, and the points on the graph also? No. Just show me that whatever you have drawn. Just show me. कहाँ पर है वो रीजन? बता दो मुझे कहाँ पर है वो. Sir, the region is below the upper yield point, sir. Okay. ठीक है. स्ट्रेन हार्डनिंग पता है आपको प्रभास? स्ट्रेन हार्डनिंग, यस सर पता है. What is it? So strain hardening basically occurs in the plastic zone. If we deform the material in plastic zone, then it gains some extra strength, and after that we load it, then it will also resist that additional strength also. So strain hardening is basically the strength mechanism of a material. So you're saying that strength of the material will increase if we will deform it within the plastic region? Yes sir. That's what you want to say, right? Yes sir. Can you show me that how actually, can you explain it with the help of this same stress strain diagram in the plastic region, that how the strength got increased? Okay sir, this is the diagram for that. And here first we load the specimen and then we unload it, and after unloading it, it will have some elastic recovery,
and then again if we load it, then it will start reaching its plastic zone, and then the strain hardening will start to occur. इसको ऊपर क्यों किया, कहाँ देखा आपने? ये जो ऊपर किया हुआ है आपने, इसको छोड़ने के बाद दोबारा फिर ऊपर ले जा रहे हो, Yes sir. हाइट इंक्रीज होती जा रही है, ये कहाँ से स्टडी किया आपने? सर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इट मींस दैट द यील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। तो उस ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है सर कि किसी भी मटेरियल को अगर हम स्ट्रेन हार्डनिंग करते हैं तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ओके ठीक है। अच्छा, थर्मल स्ट्रेस का, व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस? So thermal stress is the stress induced due to the change in temperature. अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी इसमें? सॉरी सर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी इसमें? सर वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? बॉडी अगर फिक्स्ड है दूसरे एंड से, एक तरफ से फ्री है तो स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। अगर दोनों तरफ से फिक्स्ड है तो स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा। और अगर पार्शियली थोड़ा सा मतलब गैप दिया हुआ है बॉडी के फ्री एंड पे और वॉल है, कैसे करोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट द थर्मल स्ट्रेस? सर बाय यूजिंग द फॉर्मूला अल्फा डेल्टा टी इनटू ई। अल्फा डेल्टा टी इनटू ई कहां से आया ये? सर ये बेसिकली जो टोटल डिफॉर्मेशन होता है हमारे किसी भी मटेरियल का, that is equal to the elongation due to thermal stress and elongation due to the resistance which is offered। तो जब इनको सम करते हैं तो एक तो हमारा जो नॉर्मल डिफॉर्मेशन होता है that is PL upon AE उससे आएगा, और एक जो अल्फा डेल्टा TL होता है वो थर्मल की वजह से आता है। तो इन इक्वेशन से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ओके सो प्रिंसिपल स्ट्रेस नाम सुना है आपने? यस सर। क्या होती है प्रिंसिपल स्ट्रेस? सर प्रिंसिपल स्ट्रेस जब किसी बॉडी पे मल्टीपल स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं तो मल्टीपल स्ट्रेसेस मींस दैट स्ट्रेसेस एक्टिंग इन ऑल द थ्री डायरेक्शंस एंड शेयर स्ट्रेस आल्सो। तो उस पे एक स्ट्रेंथ ऐसी होती है जिसपे वो बॉडी डिफॉर्म कर जाती है, मतलब दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, उसी को सर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। तो अगर मल्टीपल स्ट्रेसेस नहीं एक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब है प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं होगी? नहीं सर, वो डिपेंड करता है कि लोडिंग अगर यूनिएक्सियल है तो जो लोड उस पर लग रहा होता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो वो उसकी प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाती है। अच्छा, लेट्स से आपके पास ये बार है और लेट्स से ये मैं बोलता हूँ ब्रिटल मटेरियल का बना हुआ है। अच्छा। मैं इस पे टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे फेल होगा ये, कहां पर और कैसे फेल होगा? लेट्स से ग्लास रॉड है, मैं इसके ऊपर टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूँ, यस। कौन से प्लेन पे और कौन सी स्ट्रेस में फेल होगा ये? सर ब्रिटल मटेरियल फेल होता है द प्लेन विच इज एट 45 डिग्री। ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड वीकर इन शियर। तो जो शेयरिंग पे जो हमको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलती है वो 45 डिग्री पे मिलती है। ब्रिटल मटेरियल स्ट्रॉन्ग होता है टेंशन में क्या? हाँ सर। तो कौन सा मटेरियल जो है वीक टेंशन में होता है, टेंशन में वीक होता है? सर डक्टाइल मटेरियल। चलो ठीक है प्रभास, चलो लेट मी जस्ट गिव यू द फीडबैक नाउ, राइट? ओके सर। कब आपने ज्वाइन किया यूरोडिया? सर अराउंड 1 वीक हो गया है।
1 वीक हो गया, ठीक है। मॉक सुन रहे हो? हाँ सर, अभी स्नैप सुने हैं मैंने, थोड़े बहुत। थोड़े बहुत नहीं, सारे निपटा देने हैं। ठीक है सर। अभी बहुत जगह आप फॉल्टर कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, ठीक है। यस सर। बार्क का जो होता है, केवल बार्क ही नहीं, और भी कोई भी एग्जाम होगा वहां पर आपको चाहिए। बार्क में जो है वो क्या करता है, इंडेप्थ जाता है। हम्म। तो आपको जो है वो डेवलप प्रिपरेशन उतना करना है, ठीक यस है। सर। तो एक तो मॉक सारे सुनो, अच्छे से सुनो, देखो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको एनालाइज करो, और जो आपके पास नोट्स होंगे उनको भी अच्छे से स्टडी करो। यस सर। स्टडी का मतलब ये है कि उसको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। यस सर। क्वेश्चन रेज करो, क्यों ऐसे क्यों आया, अगर ऐसा होता तो ऐसे होता। यस सर। और फिर मॉक 2 अलग अलग सब्जेक्ट के, जो अपने ठीक। फेवरेट सब्जेक्ट, 5-6 सब्जेक्ट जो भी आपने तैयार करना है, यस। तो ये मॉक देते रहो बीच बीच में। तो उससे क्या होगा, एक आधे वीक में देते रहो ऐसे, ठीक। तो उससे प्रैक्टिस भी होती जाएगी, गलतियां भी पता चलती जाएंगी, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। यस। ओके ना, उसी स्ट्रेस, चलो ठीक है, आपने ठीक बताया इसमें स्पेसिफिकली। जब स्ट्रेंथ जब बताओगे ना, आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन टेक बिफोर फेलियर। यस। जनरल टर्म है बिफोर फेलियर। फेलियर जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव टर्म है। दैट मीन्स आप किसको फेलियर मानते हो, डिपेंड करेगा, मटेरियल ब्रिटल है, डक्टाइल है, यस। डिपेंड करेगा किस तरह का लोड है, ठीक है। यस। मतलब टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, शियर है। तो या तो अल्टीमेट होगा फ्रैक्चर, तो पॉइंट है उसके ऊपर, तो आपका मटेरियल जो है फेल मतलब उसमें ब्रेक हुआ। यस। For us, material is useless once it starts necking. Let's say necking, अगर मैं यस। टेंसाइल लोडिंग अप्लाई कर रहा हूँ, let's say मैक्सिमम स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसके बाद तो ऑलमोस्ट इट्स ओवर। तो मेरे लिए मैक्सिमम क्या है, वो अल्टीमेट है। या तो फ्रैक्चर कैरीज नो मीनिंग, फ्रैक्चर मतलब उसमें तो चला गया, वो खत्म ही हो गया, वहां तक तो बात ही नहीं यस। आती है। तो इस तरीके से पहले आपने जो चीज बतानी है। दूसरा, इलास्टिक रिकवरी आप ढंग से बतानी। अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं किया, उसको प्रोपोर्शनेट ड्रॉ करो। जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हो, लेट्स से उसके लिए क्या बोलते हैं, आपने किसके लिए ड्रॉ किया ये, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए, तो प्रोपोर्शनेट ड्रॉ करो। आपने देखो, दिखाओ जरा मुझे आप अपना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हाँ, प्रोपोर्शनेट नहीं है। यील्ड करने के बाद आपकी ये थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट ये है। ओके सर। इसका ठीक। मतलब हुआ कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन बहुत कम है। यस सर। यील्ड कर गया, यील्ड करने के बाद जो यील्ड प्लेटू आया उसमें स्ट्रेन ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। और उसके बियॉन्ड जब स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू हुई टिल द नेकिंग, उसमें उस रीजन में तो स्ट्रेन और भी ज्यादा है। यस सर। ऐसे लगना चाहिए ये कुछ, ठीक सर। क्योंकि ये आइडिया देता है कि आपका जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, ठीक है। यस सर। फिर मैंने आपको बोला इलास्टिक रिकवरी। इलास्टिक रिकवरी देखो, कहीं भी विद इन इलास्टिक लिमिट में डिफॉर्म कर देता हूं तो ये इलास्टिक रिकवरी है। आपने कहा विद इन इलास्टिक लिमिट ही इलास्टिक रिकवरी होती है। बाद में जब मुझे आप बताने लगे, शायद मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था स्ट्रेन हार्डनिंग का, तो वहां आपने बोला प्लास्टिक जोन में भी इलास्टिक रिकवरी होगी। यस। ऐसे निकालते हैं हम, ये आपने देखा होगा। हाँ सर। प्लास्टिक रीजन में कहीं डिफॉर्म कर दिया मैंने, तो अगर मैं लोड रिलीज कर देता हूं तो क्या होता है, थोड़ा सा रिकवर करता है। कितना रिकवर करता है, ये मैंने डॉटेड लाइन क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल लाइन और स्लैंट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इलास्टिक रिकवरी है। यस। और ओरिजिन से लेके जहां तक स्लैंट लाइन जो है वो कट कर रही है एक्स एक्सिस को, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है। यस। और अगर मैं दोबारा इसको लोड करता हूं, दोबारा लोड करता हूं मटेरियल को, तो वो ये सेम पाथ फॉलो करेगा। कौन सा, ये जो एंड वाला। स्लैंट लाइन जो मैंने ड्रॉ की है,
Yes, sir. और यील्ड कहाँ करेगा? उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे मैंने छोड़ा था। Yes. तो पहले के कंपैरिजन में पहले वो यील्ड किया था जो आपने जो प्लेटू दिखाया है, यील्ड प्लेटू दिखाया है। अब जो यील्ड करेगा जहां पर आपने छोड़ा था, तो इसलिए बोलते हैं स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी इसकी। Yes. समझे? हाँ सर। ऐसे बताना है, यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अब ये यील्ड करेगा उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपने छोड़ा था इसको, यहाँ पर। Yes. ये ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये। फिर मैंने आंसर दे दिया आपका, वही स्ट्रेन हार्डनिंग वाला भी। स्ट्रेन हार्डनिंग इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, कौन Yes, सी? Yield. यील्ड स्ट्रेंथ। क्यों? डिसलोकेशन के कारण, एंटेंगलमेंट के कारण डिफिकल्ट हो जाता उनको डिसलोकेशंस को मूव कराना Yes. प्लास्टिक जोन में। थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, आपने बताया। जनरल नहीं बोलना है, तो बताना है कि अगर इफ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एंड इफ इट इज कंस्ट्रेन्ड, Yes. कंस्ट्रेन करते हैं हम उसको, तो स्ट्रेस डेवलप होगी, क्योंकि हम उसकी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेस डेवलप होगी। मैंने कहा कैलकुलेट करो कहां से आएगा, तो ये पता होना चाहिए सिंपल सा है, इसमें क्या है उसको चेक करो कैसे निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की अगर डेफिनेशन पता है आपको, तो वहां से निकल आएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है हमारा, उसका यूज करते हैं हम। Yes. ठीक है, बस इतना तो होता है, इनपुट करना है, बाद वैल्यू निकाल देनी है। तो ये ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन है, ये तो डायरेक्टली फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ टू द पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, वो आपका जो है क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। वहां Yes. से स्ट्रेन आ जाएगी। स्ट्रेस आपको कैसे निकालते हो? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, इनपुट करो, आगे आपकी पूछ लेता है वो, सिंपल सी चीजें पूछ लेगा। ड्राइव करने के लिए कई बार बोलता है, बट इसमें ड्राइव करने के लिए है ही नहीं कुछ भी, थोड़ा सा है, बिल्कुल बेसिक है इसमें। प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस आपने जो है ढंग से बताया नहीं, मुझे गलत बताया। प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेफिनेशन बताओगे तो करेक्ट बतानी है। प्रिंसिपल स्ट्रेस कुछ नहीं है, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिंपली जो है वैल्यू ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस उस प्लेन के ऊपर जिस प्लेन के ऊपर जो है शियर जीरो है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। कोई भी प्लेन ले लो, कहीं भी प्लेन ले लो मटेरियल के अंदर, अगर उस प्लेन में मुझे जो है वो शियर स्ट्रेस जीरो मिलती है, और वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, सॉरी, और नॉर्मल स्ट्रेस है, तो उस नॉर्मल स्ट्रेस को नाम दिया है हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस। इतना सा बोलना, क्योंकि अगर आप कुछ और बोलते हो तो उसका मीनिंग ही बिल्कुल अलग निकलता है, जो आपने कहा उसका कुछ मीनिंग ही अलग निकला। तो शियर ऐसा प्लेन, जैसे आपने बोला कि टेंसाइल है, कि बताओ, आपने मुझे बोला कि डिपेंड करता है कि अगर मान लिया मैं यूनिएक्सियल लोडिंग है, तो वही प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन हो जाएगा। Yes. ठीक है, क्यों प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन हो जाएगा? क्योंकि उस प्लेन के ऊपर मान लिया आप टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर शियर तो है ही नहीं। शियर है उसमें? नहीं सर। शियर है ही नहीं, इसलिए उसको क्या कहा, समझिए। और ये देखो, ये ग्लास रॉड डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक नहीं है आपकी अंडरस्टैंडिंग, अभी इसको गो थ्रू करो, या तो मॉक में मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं किसी मॉक में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा ये अलग अलग कॉम्बिनेशन, टेंसाइल लोडिंग, कंप्रेसिव लोडिंग। ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल मोस्टली दे आर वीक इन टेंशन, ब्रिटल टेंशन में वीक होते हैं, आप उल्टा बोल रहे हो। जो डक्टाइल है वो शियर में वीक होते हैं। यस सर। ठीक है, तो इसको देखो, अलग अलग कॉम्बिनेशन, अगर वो डक्टाइल है, ब्रिटल है, टेंसाइल है, कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हो, टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, मोहर सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। मैंने मोहर सर्कल भी आपसे पूछना था, पर मुझे लग गया पता आपको कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसलिए मैंने आगे पूछा ही नहीं आपसे। तो नेक्स्ट टाइम मॉक दोगे तो ये पूरा तैयार करके करो, अच्छे से तैयार करो उसको। मॉक सुनो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक सुनो पहले। ठीक है। उससे क्या होगा, आपको लगता जाएगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन भी, इस तरह क्वेश्चन मुझे तैयार होना चाहिए। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद फिर दोबारा दोगे, तो फिर उसमें अगर कोई गलतियां मिलती हैं तो दोबारा फीडबैक मिलेगी, और दैट वे आपका लेवल उठेगा। ठीक है, ओके सर। बाकी हो जाएगा, तैयारी करते रहो उसको। ठीक है, ओके सर। ओके प्रभाष। ओके सर, थैंक यू।